سیاست کے میدان سے خبر ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ نواز لیگ کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر بھی نواز لیگ نے پلان تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وزیر داخلہ کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ نواز شریف نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو لانگ مارچ کا پلان اتحادی جماعتوں سے شیئر کرنے کی ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون اپنا ایجنڈا اتحادی جماعتوں کے ویڈیو لنک اجلاس میں شیئر کرے گی۔ اجلاس میں معاشی اور آئینی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو بجٹ کی تیاری اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ IMF سے مذاکرات پر بھی مشاورت کی گئی، جبکہ فواد چودھری نے حقیقی آزادی مارچ کا پلان بتا دیا۔ کہتے ہیں عمران خان 25 تاریخ کی صبح پشاور سے ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد آنے کی کال خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لیے ہے۔ بلوچستان میں لوگ کوئٹہ پہنچیں گے۔ حیدرآباد کو اسلام آباد بنایا جائے گا۔ سکھر میں احتجاج ہوگا۔ کراچی میں سب سے بڑا انقلاب آئے گا۔ اسلام آباد کے ساتھ تمام شہر اس مارچ میں شریک ہوں گے۔ خان 25 تاریخ کو صبح پشاور سے بہت بڑی ریلی کی ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں جو قیام ہے وہ آپ کو پتہ ہے سری نگر ہائی وے کے اوپر ہے، کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے۔ اسلام آباد میں آنے کی کال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کے لیے ہے۔ جو بلوچستان کے اندر انشاءاللہ کوئٹہ میں لوگ پہنچیں گے۔ حیدرآباد کو اسلام آباد بنایا جائے گا۔ کراچی جو ایک ہمارا سب سے بڑا ہمیں امید ہے کہ لوگوں کا جو انقلاب ہے وہ کراچی میں آئے گا، اور کراچی میں لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں گے۔ جو اگلی حکمت عملی ہماری کہ ہم یہاں پہ آئیں گے، جلسہ کریں گے یا جلوس کریں گے یا کیا کریں گے، یہ انشاءاللہ عمران خان 3 تاریخ کو بتائیں گے۔ خصوصا خبر ہے اسلام آباد سے، جہاں پر تھانہ ترنول کے علاقے فتح جنگ روڈ پر فیکٹری میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ اسلام آباد میں تھانہ ترنول کے علاقے فتح جنگ روڈ پر فیکٹری میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ PTI کے 25 مئی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم نے وزارت داخلہ سے پلان طلب کر لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وزیر داخلہ کو امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات کی رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ اہم فیصلوں کی منظوری دے گی۔ پنجاب پولیس، FC اور رینجرز کی خدمات حاصل کرنے سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا، جبکہ صوبوں سے پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد بلا لی گئی۔ آج قیدی وینز، واٹر کینن اور دیگر سامان پولیس کو فراہم کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ ریڈ زون جانے کے لیے صرف ماگلا روڈ کو کھلا چھوڑا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پشاور کا دورہ کیا۔ عمران خان کو دیکھ کر لوگوں کی بڑی تعداد ان کے گرد امڈ آئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عمران خان نے سیکورٹی حصار میں صدر بازار کا دورہ کیا۔ عمران خان چند لمحوں کے لیے گاڑی سے اترے اور پیدل بھی چلے۔ پرویز خٹک، علی امین، کامران منگش اور صوبائی وزراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اتحادی حکومت کا جانا ٹھہر گیا۔ اتحادی مدت پوری نہیں کر سکتے۔ مرکز اور پنجاب میں صرف ایک ووٹ کی اکثریت ہے۔ بلوچستان میں عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے۔ پنجاب میں 25 ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو 24 گھنٹوں میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن اس اقدام سے اسلام آباد مارچ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان پر کسی کو اعتبار نہیں۔ ان کے زبان اور خمیر میں انتشار اور فساد ہے، وہ پرامن نہیں رہ سکتے۔ جمہوریت کا گورکن بننے کی کوشش کی تو قانون نمٹے گا۔ وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ جتھی اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شرافت کے دائرے سے جو نکلے گا قانون اسے دائرے میں واپس لائے گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان مارچ کا اعلان کر کے معیشت بحالی روکنے نکلے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کو روکے جانے پر متبادل حکمت عملی تیار کر لی۔ پارٹی رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ کی صورت میں شہر شہر احتجاج ہوگا۔ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر دھرنا دیا جائے گا۔ دھرنے کے لیے مقامات کا انتخاب کر لیا گیا۔ 25 مئی کو اسلام آباد میں دھرنے کے لیے DC اسلام آباد کو درخواست دے دی گئی۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کی درخواست میں کہا گیا ہے 25 مئی کو سری نگر ہائی وے پر پرامن مظاہرہ کیا جائے گا۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آئینی طریقے کے ساتھ اس کو اس حکومت سے نکالا گیا، ہم نے پھر بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، نہ عدم اعتماد میں نہ پرائم منسٹر کے ووٹ میں، دونوں جگہ ہم نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔
हमारे खिलाफ रेफरेंस झूठा। इमरान खान साहब के बारे में दो बातें बहुत मशहूर थी कि ये शख्स करप्ट नहीं है और झूठ नहीं बोलता। मैं आज इस हाउस में खड़े होके इस पूरे हाउस के सामने बड़े वसूख के साथ ये बात करता हूं कि इमरान साहब सबसे बड़ा लोटा और करप्ट है इस पाकिस्तान में। और दूसरा, इमरान खान जितना झूठा है शायद कोई पाकिस्तान में इतना झूठा होगा। हर उसकी झूठ, रियासत मदीना से लेके हर उसकी बात, हर उसकी तकरीर, हर जो भी वो लफ्ज कहता है उसके पीछे झूठ और शरारत और फितना होता है। वो एक फितनेबाज शख्स है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये जो अब एक नया, हर रोज़ नया नैरेटिव जो है वो तश्कील देता है। शख्स को याद नहीं रहता कि मैंने 5 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले या 15 दिन पहले क्या कहा था। 4-5 जो है दफ़ा उसने मुख्तलिफ जलसों में न्यूट्रल के मतलब कहा कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। कल राया साहब उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए? जो पिछले 1 माह से जो कह रहा है उस पर एतबार किया जाए, या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पेशावर में कि पता नहीं कहाँ पे कहा है उस पर एतबार किया जाए? इस शख्स को खुद याद नहीं रहता, या तो खुद याद नहीं रहता, या जिस तरह राय साहब फरमा रहे हैं कि ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो है झूठ बोलता है, बराबर झूठ बोलता है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, फिर नया झूठ जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। और उसके हवारी जो है या वो भी बदनीयत हैं, वो उसको बिलीव करते हैं, या वो भी डिसऑनेस्ट हैं, इंटेलेक्चुअली भी डिसऑनेस्ट हैं और अदरवाइज भी डिसऑनेस्ट हैं फाइनेंशियली। तो मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन है आज हाउस के अंदर, वो राया साहब की क़यादत में बिल्कुल हम हर किस्म की तनकीद जो है उसका वेलकम करेंगे। और जो तनकीद हम पे जो की जाएगी हम उसकी रोशनी में अपनी इस्लाह भी करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो इस वक्त फ़र्ज़ ये है, एक मुश्तरका हमारी जो जंग है वो ये है कि हमने कौम को और मुल्क को दोबारा पाँव पे खड़ा करना है अपने, ताकि हम एक तरक्की का सफ़र जो है उसका आगाज़ कर सकें, एक माशी स्टेबिलिटी का सफ़र का आगाज़ कर सकें। और ये पिछले 4 साल 5 साल जो है शहबाज शरीफ ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन एक तो वो हाउस में आता नहीं था इमरान खान जो है, और अगर आते थे तो उनकी जो है तबाह नाज़क के ऊपर जो है थोड़ी सी बात भी उधर से हो जाती थी, या शोर मच जाता था, या कोई आवाज़ लगा देता था। अगर रफ़ीउल्लाह जैसे लोग जो है तो उनके तबाह नाज़क पे बड़ा गिरां गुजरता था। अगर मेरा ख्याल है कि इस हाउस में 342 अरकान ने पिछले 4 साल में सबसे कम हाज़रीन जो है ना वो साबिक़ वज़ीर आज़म की हाज़रियाँ थी। तो ये हम इस बात की तवक्को करते हैं और इस हाउस में हम ये एक वादा भी देते हैं कि हम अपोजिशन की हर किस्म की तनकीद जो है उसका मस्बत जो है वेलकम करेंगे, मस्बत अंदाज में उसको लेंगे, और जो भी अच्छी बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला उनको ज़रूर अपनाएंगे। ये अपोजिशन और इक़्तिदार, हिज़्ब इक़्तिदार जो है, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है, ये पार्लियामेंट के एक किस्म के एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। इसके बगैर पार्लियामेंट की गाड़ी नहीं चल सकती। मैं इसी अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम इस मुल्क की ईमानदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ जो है खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गौस बख्श महर साहब सबको देते हैं, सबको वेलकम है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 13.75% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तरक्की की शरह तवक्को से कहीं ज्यादा है। अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल के बाइस महंगाई बहुत बढ़ रही है। जून 2024 तक महंगाई बुलंद सतह पर बरकरार रहेगी। IMF प्रोग्राम पेट्रोल, डीजल और बिजली की सब्सिडीज के खात्मे, पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स के नफाज से महंगाई में इजाफा होगा।
स्टेट बैंक के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी और पॉलिसी की मुसलसल गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से रुपए पर बहुत दबाव पड़ा है। रूस, यूक्रेन तनाज़े और चीन में कोरोना लॉकडाउन के बायस दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल शरह नमू 5.97% रहने का इम्कान है। अप्रैल में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.4% तक जा पहुंचे। महंगाई अगले माली साल यानी 2023 में भी बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने प्लांट और मशीनरी की दरामद के लिए तवील मुद्दती कर्ज और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के लिए भी शरह सूद में इजाफे का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक इन सहूलियात के लिए शरह सूद को मॉनेटरी पॉलिसी से मुंसलिक किया जाएगा, ताहम इनकी शरह पॉलिसी रेट से कम रहेगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पिछले 40 दिनों में आपने जो इस मुल्क का हशर किया है, हम मजीद 40 दिन नहीं दे सकते। हकीकी आज़ादी मार्च को कोई नहीं रोक सकता। मार्च हर सूरत होगा, कोई इसमें तशद्दुद को शामिल करने की कोशिश न करे। लाठी और गोली से यह मामला हल नहीं होने वाला। अगर आप गिरफ्तारियां करना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसका आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नून लीग से कहना चाहता हूं कि अपने सियासी लोगों से बात करें और पाकिस्तान को ट्रैक पर डालने की कोशिश करें। आप पीडीएम से मशवरा करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, आपके पास एक दिन मौजूद है। वेलकम। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद मार्च का प्लान तैयार कर लिया। पार्टी सराय के मुताबिक इस्लामाबाद मोटरवे पर काफिलों के लिए सौबे इंटरचेंज को सेंटर पॉइंट मुकर्रर किया गया है। पेशावर से ब्यूरो चीफ तारिक वहीद से तफसीलात जान लेते हैं। तारिक, इस्लामाबाद मार्च के प्लान से मुतालिक क्या तफसीलात हैं मजीद? बिल्कुल साहब, ये 2-3 दिन से पेशावर में पीटीआई की क़यादत लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ है और जो गैर हतमी इब्तिदाई प्लान अभी तक हम उसको मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद मोटरवे पर सवाबी इंटरचेंज को खैबर पख्तूनख्वा के लिए सेंटर पॉइंट मुकर्रर किया गया है, जहां पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, परवेज खटक और दीगर कायदीन जो है वो इज्तिमाई जो काफिला है उसकी क़यादत करेंगे और वहाँ से रवाना होंगे। इससे कबल जो पेशावर वादी पेशावर के इलाके है वहाँ से कारकुन पेशावर इंटरचेंज से दाखिल होकर चारसदा इंटरचेंज पे जमा होंगे। इसी तरह मर्दान मलाकन डिवीजन के जो कारकुन है वो सवाबी इंटरचेंज पहुंचेंगे, जबकि डे खान साइड पर जो मुल्हिका अजला है वहाँ पर करच, टांक और दीगर अजला जो है वहाँ के कारकुन जो है वो हकला इंटरचेंज पहुंचेंगे, वहाँ से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इस हवाले से हमारी बात हुई है पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात तूरू साहब से, तो उन्होंने तस्दीक है कि जो प्लान है, शेड्यूल है, वो हतमी तौर पर अभी तैयार नहीं किया गया, उसमें रद्दबल हो सकता है, लेकिन इब्तिदाई प्लान तैयार किया गया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मुमकिना रुकावटों को तोड़ने के लिए भी बंदोबस्त किया गया है, क्रेंस का बंदोबस्त किया गया है, साथ ही कारकुनों की तिबी इमदाद के लिए भी बंदोबस्त किया गया है। तो उनके मुताबिक किसी किस्म की रुकावटें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके लिए भी कारकुनों की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक भाई तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीआईए 31 मई से हज ऑपरेशन शुरू करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से हुज्जाज रवाना होंगे। इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। अहम खबर यह है कि मौसम की खराबी के बायस ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। ओकाड़ा में आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया था। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करना था, ताहम मौसम की खराबी के बायस ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। मौसम की खराबी के बायस ओकाड़ा में आज होने वाला मुस्लिम लीग नवाज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करना था। इस हवाले से इंतजामात भी मुकम्मल किए गए थे, ताहम मौसम की खराबी के बायस जलसा मुलतवी कर दिया गया है। बात करेंगे पीआईए 31 मई से हज ऑपरेशन शुरू करेगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से हुज्जाज रवाना होंगे। पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और कोयटा से भी परवाजें जाएंगी। तैयारे जद्दा और मदीना मुनव्वरा में लैंड करेंगे। 13 अगस्त तक 257 परवाजें शेड्यूल्ड हैं। पीआईए इंतजामिया ने वज़ीर हवाबाजी को ब्रीफिंग में बताया कि 4 एयरबस 320 तैयारे पीआईए के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल होना शुरू हो गए हैं। एक तैयारा गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंच गया है, दूसरा इस माह के आखिर तक पहुंच जाएगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक ज़ायरीन के लिए दमिश्क और नजफ के ऑपरेशन को वुसअत दे रहे हैं। दोस्तों, खबर ठट्ठा से, जहां पर रिक्शा नहर में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रिक्शे में सवार 10 अफराद नहर में डूब गए। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया है, जबकि 3 अफराद की तलाश जारी है। दूसरी जानिब गलियात के इलाके नूंगा गली में 2 बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक बस खाई में जा गिरी। बस की खाई में गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और बसों के दरमियान रेस लगाने के बायस पेश आया। ये दिलखराश मनाजिर दौरान सफर एहतियात और आगाही के लिए दिखाए जा रहे हैं।
कराची में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में पहली बार 200 रुपए 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची परवाज जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।